Hallelujah. हालेलुया। So greeting to all the disciples of Christ in the house. और हम सारे परमेश्वर के चेलों को सलाम करते हैं सुबह। For a reason I always like to call us disciples and not Christians. और इस वजह है मैं आप सबको चेला बुलाता हूँ और सिर्फ मसीही नहीं बुलाता। I have no problem with word being Christian. और मुझे ये मसीही शब्द से कोई दिक्कत नहीं है। I am a Christian. मैं एक मसीही हूँ। But I have seen that what you believe is what you become. पर हम जो विश्वास करते हैं हम वही बनते जाते हैं। And the Christians, they believe that they are so much like Christ. और जो मसीही है वो विश्वास करते हैं कि वो मसीह के जैसे हैं। But they are so much involved in traditions. पर वो इतने रीति रिवाजों में खोए रहते हैं। But disciples, on the other hand, पर जो चेले हैं दूसरे हाथ पर, they are focused on loving Him. वो केंद्र अपना ध्यान देते हैं उसको प्रेम करने में। They are focused on glorifying Christ in whatever way possible. और वो देखते हैं कि वो कैसे हर एक तरीके से परमेश्वर को महिमा दे सकें। And it was disciples who got the term Christians. और वो चेले ही थे जिन्होंने ये शब्द लेकर आए मसीही। So this morning we celebrate around the world Palm Sunday. और आज इस दिन पे हम पूरे दुनिया में खजूर का इतवार मनाते हैं। We are celebrating our King of Kings and the Lord of Lords who came into the Jerusalem with a shout of praise. और हम उस राजाओं के राजाओं की महिमा करते हैं इस दिन जो यरूशलेम में राजा की तरह आया था। And Christ came into this world and He brought us a kingdom who has no end. और मसीह इस दुनिया में और ऐसे राज्य को लेकर आया जिसका कोई अंत नहीं होगा। His kingdom is eternal kingdom. और उसका जो राज्य है वो हमेशा का है। The kingdoms in this earth, और जो राज्य इस पृथ्वी पर हैं, they have a starting date. उनकी एक शुरुआत का दिन है, They also have an expiry date. पर उनका एक अंत का दिन भी है। But the kingdom of Jesus Christ, पर जो यीशु मसीह का राज्य है, it doesn't have expiry date. उसका कोई अंत नहीं है, For it is eternal kingdom. क्योंकि वो एक हमेशा का राज्य है। And Jesus has brought this kingdom into this earth. और यीशु मसीह इस राज्य को इस पृथ्वी पर लेकर आया। And we all are part of that kingdom when और we हम receive सब Jesus. उस राज्य का हिस्सा बनते हैं जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। Do you believe that this morning? क्या इस बात पर आप विश्वास करते हैं That you सुबह are a part of the kingdom that is eternal? जो आप उस हमेशा के राज्य का हिस्सा है? The Bible says that we are a stranger on a foreign land. और वचन ऐसे कहता है कि हम एक दूसरे देश में रहते हैं This is a temporary place. और ये हमेशा की जगह नहीं है, But there is an eternal destination where we all have to be. पर हमारी एक नियति है जो हमेशा की होगी And that is the kingdom of God. और वो है परमेश्वर का राज्य। And God has placed a prepare for each one of us who is seated this morning. और परमेश्वर ने एक जगह तैयार की है हम सबके लिए जो यहाँ पर बैठे हैं And सुबह, He longs for us to be there. और वो चाहता है कि हम वहाँ पर हों। The Bible also says that we are the ambassadors of Christ. और वचन ऐसा भी कहता है हम परमेश्वर के राजदूत हैं। Ambassador is a person that looks up about the kingdom operations in a foreign land. और वो राजदूत एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने राज्य का कार्य देखता है एक दूसरे देश में। It makes sure the kingdom's agendas and the kingdom motives work well in a foreign land. और वो ध्यान रखता है कि जो उस राज्य के सारे नियम और व्यवस्था है वो दूसरे देश में सही से कार्य कर सके। And the ambassador carries kingdom and its qualities and the mindset of the king. और वो जो राजदूत है वो उस राज्य के राजा का मन रखता है, उसकी योजनाएं अपने दिमाग में लेकर चलता है। Because if the ambassador doesn't have the mind of the king and the understanding of the king's heart, the kingdom can never expand and function efficiently. और जो राजदूत है अगर वो अपने राजा के योजनाओं को ना समझे, उसके हृदय को ना समझे, तो हो सकता है वो सही से प्रभावी ना हो। So it is very important for ambassador to have the mind of the king. तो इसलिए उस राजदूत के लिए जरूरी है कि वो उस राजा के हृदय को अपने मन में रखे। And it is very important for the disciples to have the mind of the king, and that is Jesus Christ. और वो है चेलों के लिए भी जरूरी है कि वो अपने राजा यीशु मसीह के मन में जो है वो अपने साथ रखे। Because we are the ambassadors of Christ and we have been called to expand His kingdom upon this earth. क्योंकि हम उसके राजदूत हैं और हमें बुलाया गया है कि हम उसके राज्य को फैला सके इस पृथ्वी पर। So this morning the title of my sermon is A Disciple's Mind. तो आज सुबह का मेरे वचन का शीर्षक है एक चेले का मन। It is very important for a disciple to have the mind of Christ. और बहुत ज़रूरी है एक चेले के लिए अपने मसीह के मन को जानना। We as a church believe in intentional discipleship. और हम एक कलीसिया होने के नाते एक इच्छित चेला बनाने में विश्वास रखते हैं। In a discipleship journey, many of people they focus upon hearts and upon hands.
और कई बार इस चेले बनने की प्रतिक्रिया में लोग हृदय और उनके हाथों पे ध्यान देते हैं, That is loving God and serving people. और वो है लोगों को प्रेम करना और लोगों की सेवा करना। But we often miss that is most important, and that is our mind. और जो सबसे जरूरी चीज हम भूल जाते हैं वो है हमारा मन, हमारा मस्तिष्क। But the New Testament is full of the scriptures that relates to mind. पर जो नया नियम है वो इतने सारे वचनों से भरा है जो मस्तिष्क और मन की बातें करता है। And there are New Testaments that calls us to have a transformed and a renewed mind, which is like Christ. और ऐसे ही वचन हमें बताता है कि हमारे एक परिवर्तित और एक नया मन होना चाहिए मसीह के अनुसार। In Romans chapter 12 verse 2, it says, "Be transformed by the renewing of your mind." और रोमियो 12:2 ऐसा कहता है कि अपने मन को नया बनाओ वचन के द्वारा। Last Sunday, Pastor Pankaj spoke to us about repentance, which leads to redemption. और पिछले सप्ताह पास्टर पंकज ने हमें बताया वो पश्चाताप के बारे में जो हमें उद्धार में लेकर चलता है। And being a part of repentance leading to redemption, the most important part in that is our mind. और जब हमें पश्चाताप के लिए बुलाया जाता है कि हम छुटकारे को पा सके, उसमें सबसे जरूरी चीज होता है हमारा मन। If our mind is not renewed, that means we never repented. अगर हमारा मन नया नहीं बनाया गया, इसका मतलब हमने पश्चाताप नहीं किया है। And Bible says that a disciple of Christ, they need to have a renewed mind, which is the mind of Christ. और वचन ऐसा कहता है एक जो मसीह का चेला है उसका मन नया बनाया जाना चाहिए, या कि उसके अंदर मसीह का मन आना चाहिए, मसीह की बुद्धि होनी चाहिए। On day-to-day life, most of our life is based on the decisions that we make. और हमारा हर दिन इस बात से बना होता है कि जो फैसले हम लेते हैं, And the decisions are not made in your heart but in your minds. और जो फैसले हैं वो आपके हृदय में नहीं लिए जाते बल्कि आपके मन में लिए जाते हैं। And that mindset that you carry depends the kind of a life you live. और जो मस्तिष्क और मन आप लेकर चलते हैं वो चीज देखता है कि आपका जीवन कैसा होगा। And depending on your mind, it depends whether you will be successful or you will be a failure. और आपके मन पे निर्भर करता है कि आप सफल व्यक्ति होंगे या असफल व्यक्ति होंगे। So we as a disciple of Jesus Christ, very important, need to have a mind of Christ. और हम एक चेला होने के नाते यीशु मसीह के, हमारा मन परमेश्वर के अनुसार यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। The key passage for this morning I have taken from the book of Philippians. और जो पैसेज मैंने आज सुबह लिया है वो मैंने फिलिपियों की किताब से लिया है। And here in Philippians, Paul writes to the church in Philippi. और यहाँ पे जो पौलुस है वो फिलिपियों की कलीसिया को ये लिखता है। And the church of Philippi was the first church, Christian church in Europe, और यूरोप में वो पहला मसीही कलीसिया थी, which was planted by the apostle Paul जो अपोस्टल पॉल ने जिसका स्थापना की थी on his second missionary journey around AD 50 to 51. और उनकी दूसरी मिशनरी जर्नी में जो AD 51 के करीब थी। And the church of Philippi is something very close to the heart of apostle Paul. और जो प्रेरित पौलुस थे उनके हृदय के बहुत करीब थी ये कलीसिया, And he has made many disciples. और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे चेले बनाए। And this letter is a letter of discipleship to that church. और ये जो पत्र है वो एक चेले के लिए है उस कलीसिया के। And Paul says to them in verse 5, chapter 2 verse 5. और पौलुस उनसे ऐसा कहता है पाठ 2 उसके 5वें वचन में, And it says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." कि हो सके तुम्हारा मन वैसा ही बनाया जाए जैसा मसीह में है। Now he doesn't say that you need to copy Jesus' miracles, और उन्हें ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें चमत्कारों को कॉपी करना है जो यीशु मसीह ने किए थे, or you need to quote his sermons. या तुम्हें जो उसने प्रचार किया था वही बोल देना है। He says that you need to think like him. पर वो कहता है कि तुम्हें उसके जैसा स्वभाव रखना है, उसके जैसा सोचना है। We live in a world that is so full of noises, pressures and distractions, और हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारा दबाव है हम पे, which constantly shape the way we think. और वो उस चीज को आकार देता है जिस तरीके से हम सोचते हैं। So many Christians are trying to live for Jesus, but they are still thinking like the world. और कई मसीही हैं जो यीशु मसीह की तरह जीना तो चाहते हैं पर सोचते दुनिया की तरह हैं। But true discipleship doesn't begin with behavior, it begins with mind. पर जो असली चेला बनना है वो हमारे स्वभाव से नहीं बल्कि हमारे मन से शुरू होता Because है। when your mind starts to get renewed, you start to become like Christ. जब आपका मन नया होने लगता है तो आप मसीह के जैसे बनते जाते You हैं, start to walk like Christ, you start to behave like Christ. और आप मसीह की तरह चलते हैं, मसीह की तरह स्वभाव रखते हैं, It all starts with mind. और वो सब मन से शुरू होता है। So if we want to live like Jesus, we must learn to think like Jesus. और अगर हम मसीह की तरह जीना चाहते हैं तो हम मसीह की तरह सोचना शुरू
शुरू करें। A renewed mind leads to a transformed life. और जो एक नया मन है वो एक परिवर्तित जीवन की ओर ले चलता है। So this sermon calls us back to have the mind of a Christ this morning. और ये प्रचार आज हमें वापस बुलाता है कि हम मसीह की तरह अपने मन को बनाएं। So this morning we are going to see from Philippians chapter 2, और आज सुबह हम देखेंगे फिलिपियो पार्ट 2 से from verse 1 to 11. और 1 वचन से 11 तक। Philippians chapter 2 from verse 1 to 11. और हम फिलिपियो 1 उसका 1 से 11 देखेंगे। Chapter 2? फिलिपियो पार्ट 2 उसका 1 से 11 तक। Yes. So Prerna can read for us and we will follow along in our Bibles. और अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Amen. God bless the hearing and the reading of His अब word. परमेश्वर वचन के सुनने और बोले जाने पर आशीष दे। So Paul begins the chapter with a very deep appeal. और यहाँ पे जो पौलुस है उसने बहुत गहराई की बात से इस पद को शुरू किया है। He says, if you have received comfort from Christ, if you have felt His love, और वो कहता है अगर तुमने कुछ शांति प्राप्त की है मसीह से या प्रेम को पाया है, if you have the Holy Spirit living in you, you have the fellowship with the Holy Spirit, और अगर तुम आत्मा के साथ सहभागिता करते हो, then fulfill this joy in me, कि मुझ में ये आनंद को पूरा करो, that you also be the same like-minded. कि तुम एक मन रहो। So what does it mean to be like-minded? तो एक मन होने का अर्थ क्या है? Philippians chapter 2 verse 2, it says, being like-minded, having the same love, being one spirit and of one mind. और यहाँ पे फिलिपियो 2:2 कहता है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। So like-minded doesn't mean that everyone is acting same like a robot. और एक मन होने का अर्थ ये नहीं है कि सब एक जैसे ही व्यवहार करे एक रोबोट की तरह। Like-minded means that every disciple of Christ is united in one purpose and one vision. और इसका अर्थ ये है कि हर एक चेला जो मसीह का है वो एकता में बना रहे, एक उद्देश्य और एक दर्शन के लिए। And this purpose and vision is anchored in the gospel of Jesus Christ, और ये जो उद्देश्य और दर्शन है वो बना होना चाहिए परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा, which expresses the love of Christ जो दिखाता है मसीह के प्रेम को and having the kingdom mindset. और जो राज्य की जो मनसा है, जो मन है वो लेकर चले। It is very sad to see in believers और ये बहुत ही दुखद है मसीहियों में देखना that many themselves they call that I love the kingdom of God, और कितने हैं जो कहते हैं मैं परमेश्वर के राज्य से प्रेम करता हूँ या करती हूँ, but they choose their own regional culture over kingdom पर culture. वो अपने जिस जगह पर रहते हैं वहाँ की संस्कृति को चुनते हैं ना कि राज्य की संस्कृति को, Because kingdom mindset chooses kingdom culture over every other culture. क्योंकि राज्य की जो मानसिकता है वो पर राज्य की संस्कृति को चुनती है किसी भी संस्कृति के ऊपर। Think of it like a team on a mission. और आप इस टीम के बारे में सोच सकते हैं जो एक मिशन पे है, So like-minded is like the team who is on a mission. और ये एक मन होना एक टीम की तरह है जो एक ही उद्देश्य रखता है, एक ही मिशन में जा रहा है। Each person has a unique role, और हर एक जो व्यक्ति है उसका एक अनोखा कोई ना कोई रोल है but या they हिस्सा है, all are working towards the same goal. पर वो सब मिलकर एक ही दर्शन की ओर कार्य कर रहे हैं। Churches that are like-minded are unstoppable, और जो कलीसियाएं एक मन रखती हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता, but the churches that are double-minded are unstable. पर जो कलीसियाएं दो मन रखती हैं वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाती। So we as a disciples of Jesus,
और क्योंकि हम मसीह के चेले होने के नाते we have to be like-minded like Jesus. तो हमें मसीह की मानसिकता को रखना है। A disciple's mind reflects his master's mind. और जो एक चेले का मन है वो दर्शाता है अपने स्वामी के मन को। So this morning I'm going to give you the 4 marks of a disciple's mind. और मैं आज आपको 4 चिन्ह दिखाना चाहता हूँ एक चेले के मन के, So which can help you to understand if you are a follower of Jesus or you are a disciple of Christ. और ये चीज आपको समझ में मदद करेगी कि क्या आप एक चेले हैं मसीह के या बस उसके पीछे चलते हैं। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Can I see your notes? क्या मैं आपके नोट्स देख सकता How हूँ? many people are writing? आप में से कितने लिख रहे हैं? If you don't have Bible, if you don't have a pen, we will provide you. अगर आपके पास एक बाइबल या पेन नहीं है हम आपको दे सकते हैं। So a disciple minds reflect Jesus's mind. तो एक चेले का मन दिखाता है कि यीशु के मन में क्या है। And the first mark of a disciple's mind is और जो चेले के मन की पहला चिन्ह ये है, our disciple's mind chooses oneness. एक चेले का मन एकता चुनता है। Philippians chapter 2 verse 2 to 4 it says, और फिलिपियो 2 उसका 2 से 4 ऐसा कहता है, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than themselves. Let each of you look not only of their own interest, but also for the interest of others. तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करें। So a disciple of Jesus doesn't think only about themselves. और एक जो मसीह का चेला है वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, They think about how to live in unity with others in the body of बल्कि वो Christ. देखता है कि कैसे वो एकता के साथ उन दूसरे कलीसिया के लोगों के साथ मसीह के शरीर में रह सके। Paul says, if you have received comfort from Christ, if you have felt His love and Holy Spirit is in you, then live according to unity. और मसीह वचन ऐसा कहता है, अगर तुमने मसीह की शांति और प्रेम के से ढांढस और आत्मा की सहभागिता पाया है तो एकता में रहो। Which is the word that is here, one accord. और जहाँ पे इसी से यहाँ एक शब्द आता है एक मन होना। Because your mind decides what actions you are going to do. तो आपका मन फैसला लेता है कि आप क्या कार्य करेंगे। Your mind decides what decisions you are going to make. और आपका मन फैसला लेता है कि आप क्या फैसला आगे लेने वाले So हैं। our disciple minds decided to choose unity over division. तो एक चेले का मन चुनता है एकता विभाजन के ऊपर। Amen. आमीन। It says in Psalms 133 verse 1, behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. और वो कहता है कि कितना ही सुहावना है भाइयों को एकता में साथ में वास करना। So that kind of unity only comes with intentional decision making. और ये सब तभी आता है जब आप इच्छित रूप से कोई फैसला लेते हैं। A mind that values people over ego and love over preferences. और जो लोगों को अपने स्वार्थ के ऊपर प्रेम करना या अपने हित के ऊपर उनके हित को चुनना। Amen. आमीन। So we as a disciple of Jesus Christ should have a mind of unity. तो एक मसीह के चेले होने के नाते हमारा एकता का मन होना चाहिए। So think of it as a choir that is singing in perfect harmony. और आप इस क्वायर की तरह सोच सकते हैं जो एक एकता में गा रहे हैं। There are different voices and different ranges. अलग अलग आवाजें हैं, अलग अलग रेंज है उनकी। But when we listen to them, it all blends in and it's a beautiful music. और जब वो हम उनको सुनते हैं वो साथ में मिलकर एक खूबसूरत गाने को बनाते हैं। Let me tell you my story of a choir. और मैं अपनी एक कहानी बताना चाहूंगा आपको क्वायर की। When I went to Russia, और जब मैं रशिया चला गया था so they took me in choir. उन्होंने मुझे क्वायर में डाला। But being in church here, I know how to sing. I know how to play instrument. और हाँ, कलीसिया में होने के नाते मुझे इंस्ट्रूमेंट बजाना आता था और गाना भी गाना आता था। But there we used to have combined service with the Africans. पर हमारे साथ में अफ्रीकन लोगों का भी कलीसिया आता था। Now their level of worshiping, their level of singing is completely different level. पर जो उनके गाने का और उनके बजाने का स्तर है वो बिल्कुल ही अलग है। There you need to know alto, tenor, and there was one more, I guess I'm forgetting it. और उनका कुछ तो गीत के तरीके से होते थे जो हमें आने चाहिए थे। So that 3 notes every singer should know. तो वो 3 जो नोट्स हैं उनके गीत के सबको आने चाहिए। And we are Indians.
और हम तो भारतीय थे, हमारा एक ही नोट है. हम तो एक ही नोट जानते हैं. And now they're saying, please sing alto for me, brother Abhishek. और वो कहते हैं कि मेरे लिए आप ऑल्टो गाएं ब्रदर अभिषेक. For me, I know for me, alto is only that alto four-wheeler in India. I know और only that मेरे लिए alto. ऑल्टो बस वो चार पहियों की गाड़ी है इंडिया So में. I'm thinking how alto is starting to sing. मैं सोचता हूँ कि ऑल्टो कैसे गाना गाएगा. And they're like, brother Abhishek, come on, sing in alto. उन्होंने कहा भाई अभिषेक ऑल्टो में गाएं. I don't know. Whatever I knew from here, I sang. और मुझे पता नहीं था, जो मुझे आता था मैंने गा दिया. And we as Indian worship team had a very difficult time. और हम जो भारतीय जो क्वायर थी उनको बहुत ही मुश्किल समय से गुजरना Over पड़ा. 7 years, we learned how to sing on all those 3 scales. और हमने वो 7 सालों में उन 3 स्केल्स पे गाना सीखा. But they were very gracious to us. पर वो हमारे ऊपर बहुत ही अनुग्रहकारी थे. They taught us and helped us to understand those things. उन्होंने हमें सिखाया, उन्हें मदद की कि हम समझ सके. And eventually we started singing along with them in that perfect harmony. और फिर धीरे धीरे हम उनके साथ एक सुर में गाना सीख गए. So a disciple's mind is like this. तो एक चेले का मन ऐसा होता है. The church is God's choir. और जो कलीसिया है वो यीशु मसीह की क्वायर है. When our minds are united like Christ, और जब हमारी मानसिकता, हमारा मन मसीह के साथ एक होता है, our lives become a beautiful song that reflects the beauty of Jesus. और हमारे जो जीवन है वो इतना एक सुंदर गान बन जाते हैं, तो यीशु की सुंदरता को दिखाते हैं. Even Jesus didn't walk alone. और यीशु मसीह अकेले नहीं चले. He chose to include disciples. उन्होंने चुना कि वो अपने चेलों को शामिल करें. Unity was in Jesus' mind. और एकता यीशु मसीह के मन में थी. And not only in his mind, in his methods. बल्कि मन में नहीं, उनके तरीकों में भी एकता थी. But division is a very spiritual attack that is seen in the mind of believers. और जो विभाजन है वो बहुत बड़ा हमला है जो चेलों के मन पे किया जाता है. We allow pride, we allow comparison or personal offense to grow in our thoughts. और हम घमंड को और पर्सनल ऑफेंस को और Yeah, pride, comparison and personal offense. हम तुलना करने को, हम घमंड करने को, हम चोटिल होने को अपने मन में लेकर चलें. And that leads to breaking of unity. और वो चीज विभाजन को लाती है. And we lose the mind of Christ there. और हम चेले के मन को खो देते हैं उस But समय. Paul says, पर पौलुस कहता है, he says against the selfish ambition and vain conceit. वो कहता है स्वार्थी मन और जो भी आपके मन की इच्छा है उसके विरुद्ध. Selfish ambition says, I want to win. और जो स्वार्थी इच्छा है वो कहती है मैं जीतना चाहता हूँ. Vain conceit says, I want to be seen. और कहता है कि अपने मन के बारे में कि मैं बस मुझे देखे सब. But the mind of disciple says, पर जो एक चेले का मन कहता है, I want my brother to win and I want him to be seen. और मेरा भाई जीते, मेरे भाई को देखा जाए. Because we have to live in unity. क्योंकि हमें एकता में रहना है. Jesus says, यीशु मसीह कहता है, every kingdom divided against itself is brought to ruin. हर एक राज्य जो अपने आप में विभाजित है वो विजय नहीं हो सकता. So if we are going to disciple nations, अगर हम राज्यों को चेला बनाने वाले हैं, we must first be united in the mind of Christ. तो हमें अपने मन को एक करना है मसीह के मन के साथ. So how can I apply this? और हम कैसे इसका उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं? Ask yourself, अपने आप से पूछें, do I have any offense against one another? क्या मेरे मन में कोई भी ऑफेंस है किसी के ओर? Is there any agreement that is much more important than the unity in the body of Christ? कोई ऐसा सौदा है जो आपके मन में ज्यादा जरूरी है एकता के ऊपर? If somebody has hurt you, pray for them. अगर किसी ने आपको चोटिल किया, आप उसके लिए प्रार्थना करें. Release forgiveness. और उस क्षमा को आप रिलीज करें. And that's how unity will begin to grow more. और ऐसे ही एकता और बढ़ती जाएगी. And because our mindset is about making unity, और क्योंकि हमारी मानसिकता एकता लाने के बारे में है, we become peace lovers. हम शांति के प्रेमी बन We जाते become हैं. peacemakers. हम शांति बनाने वाले बन And जाते in हैं. every conflict, we bring Jesus, not our opinions. और हर एक लड़ाई है हम यीशु को लेके आते हैं, ना कि अपने ओपिनियंस को. A disciple doesn't just follow Jesus. और एक चेला सिर्फ यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता, They think like Jesus. वो यीशु मसीह की तरह सोचता है. Now the second mark, और जो है दूसरा चिन्ह, a disciple's mind is humble. तो एक चेले का हृदय दीन होता है. Jesus it says in Philippians chapter 2 verse 3, और जो फिलिपियो 2 और 3 में ऐसा कहता है, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. वो कहता है विरोध या छोटी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, Rather in humility value others above पर yourself. दीनता से एक दूसरे के अपने से अच्छा समझो. Humility is not thinking less of yourself, और दीनता का मतलब नहीं है आप दूसरों से नीचा समझे खुद को, it's thinking of yourself less. या अपने आप को कम समझे. A disciple's mind resists selfish ambition and intentionally honoring others.
और जो एक चेले का मन है वो इसके विरोध में होता है कि झूठी बड़ाई के और दूसरों को आदर देने के लिए। Christ was the King of Kings, और यीशु मसीह राजाओं का राजा था, but he humbled himself to serve others. पर उसने दूसरों की सेवा करने के लिए खुद को दीन कर लिया। He came not to be served, और वो अपने आप की सेवा करवाने नहीं, but to serve. पर वो सेवा करने आया। That is the mindset of Christ. और वो मसीह का मन है, मान He was सकते हैं। not selfless. और वो अपने आप से कम था, Sorry, he was selfless, और वो उनके अंदर आप नहीं भरा but he था, was not self-centered. पर वो आत्म केंद्रित नहीं थे। So when you have a humble mind of Christ, जब आपके अंदर मसीह का वो दीन मन होता है, you look how you can raise everybody up, how you can encourage everybody up in the church and alongside around your neighborhood. आप देखेंगे कि कैसे आप अपनी कलीसिया में, अपने पड़ोस में दूसरों को ऊंचा उठा सकते हैं। Picture Jesus kneeling down to wash Jesus' disciples' feet. और आप सोचिए यीशु मसीह जो अपने घुटनों पे आया अपने चेलों के पैर धोने के लिए। Jesus even washes Judas's feet. उन्हें यहूदा के तक पैर धोए। He knew betrayal was coming, उसको पता था कि धोखा आ रहा है, but yet he chose humility there. पर फिर भी उसने दीनता चुनी वहां पे। Many times we might have that kind of circumstances. और हो सकता है कई बार हम ऐसी परिस्थिति में हों, We do so much for someone, हम किसी के लिए बहुत कुछ करें they disappoint us and leave us, और वो हमें निराश करके छोड़ दें, or they hurt us or break our trust. या हमें चोटिल करें या हमारे भरोसे को तोड़ें। But when they come, पर जब वो आए or you see them, और आप उन्हें देखें, what is your mindset towards them? तो आपकी मानसिकता क्या है उनकी Is it a ओर? mindset of revenge? क्या वो एक बदले की मानसिकता है, Or it's a humble mind of Christ to make sure that even though what they did, I want to see them succeed. और चाहे हम वो दीन मानसिकता रखें कि चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना करा हो, मैं उन्हें सफल देखना चाहता हूँ। This kind of humility only flows from a transformed mind, और ये दीनता उसी मन से आती है जो परिवर्तित हुआ हो, which is a disciple's mind. जो है एक चेले का मन। Pride blocks relationships and blinds our heart. और जो घमंड है वो हमारे रिश्तों में रुकावट लाता है, हमारे मन को अंधा बनाता Many है। conflicts in churches and homes start with selfishness. और जो बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हैं कलीसिया में और परिवारों में, वो स्वार्थ से शुरू होती हैं, Not with theology. ना कि थियोलॉजी से। It's selfishness वो स्वार्थ से शुरू that हुई है, brings division, जो विभाजन को लेकर that आती takes है, away the mind of Christ from us. जो मसीह के मन को हम में से हटा देती है। The world says, think of yourself. और दुनिया कहती है अपने बारे में सोचो, Jesus says, deny yourself. पर मसीह कहता है अपने आप को त्याग दो, Humble yourself. अपने आप को दीन बना लो। So you see your brethren lift up and encourage on high. कि आप अपने भाई को बढ़ता हुआ देखो, उन्हें उत्साहित होता हुआ In देखो। James chapter 4 verse 6, और याकूब उसका 4 उसके 6 में ऐसा कहता है, God opposes the proud but gives grace to the humble. और उसका याकूब 4 उसका 6 में ऐसा लिखा है God opposes the proud but gives grace to the humble. कि वह तो अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। So if you have a humble mind of Christ, तो अगर आपका मन मसीह की तरह दीन है, God is ready to lift you up. तो मसीह तैयार है God आपको will not उठाने के लिए। resist you. वो आपके विरुद्ध नहीं होगा, God will delight in you. बल्कि वो आप में आनंदित होगा। Humility isn't weakness. और जो दीनता है वो कोई कमजोरी नहीं है। Many people think that being humble is being weak. तो लोगों को लगता है कि दीन होने का मतलब है कमजोर होना। It is the power of Christ under control in you. और वो जो मसीह की जो सामर्थ है वो आपको नियंत्रण में लेती है, वो दीनता है। So how do I apply the humble mind of Christ upon myself? तो कैसे हम परमेश्वर के दीन मन को अपने जीवन के उपयोग में लाएं Serve someone without being asked. और किसी की सेवा करें उनसे उनके पूछे बिना। Look for opportunities. आप अवसर को ढूंढे। How can I lift one another? हम कैसे दूसरों को उठा सकते How हैं, can I encourage one another? हम कैसे दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। Apologize first. पहले आप माफी मांगे, Don't hold step to your ego. आप अपने ईगो में ना रहें। The next person in front of you is more important than your ego. आपका जो व्यक्ति जो आपके सामने है वो ईगो से बढ़कर है आपके। Ask God to reveal pride in your heart. और परमेश्वर से पूछे कि दिखाए कहाँ आपके मन में घमंड है। There are very shades of pride you may never know. और वह बहुत सारे स्तर हैं घमंड के जो आप ना जानते हो शायद। But a disciple of Christ पर एक जो मसीह का चेला है replaces the pride with the humble mind.
वो अपने घमंड को बदलता है एक दीन हृदय के साथ। Celebrate others. दूसरों के लिए जश्न मनाएं, Be the greatest cheerleaders for others. दूसरों के लिए सबसे बड़े चीयर लीडर बने। You might not reach there, आप शायद वहां तक ना but पहुंचे, if your brother have reached there, पर अगर आपका भाई या बहन वहां पहुंचे do हैं, not murmur or complain. तो आप उसके बारे में कुड़कुड़ाए ना, Celebrate in their victory. उनकी जो विजय है उसमें आनंद मनाएं, Cry in their sorrows. उनके दुख में उनके साथ आंसू को बहाएं। That is the humble mind of Christ. वो है दीन हृदय मसीह का, And Jesus carried that mind. और यीशु मसीह उस मन को लेकर चलता था। Because a disciple doesn't just follow Jesus, तो एक चेला सिर्फ यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता, they think like Jesus. वो यीशु मसीह की तरह सोचता है। Hallelujah. हालेलुया। It comes to the third point. और वो आता है तीसरे चिन्ह की ओर। A disciple's mind is obedient. एक चेले का मन आज्ञाकारी होता है। Hallelujah. हालेलुया। In verse 5 it says, let this mind be in you, which और- was also in Christ Jesus. वो कहता है ऐसा ही मन तुम्हारा हो जैसा मसीह का मन था। And it says, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of man. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। And being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of cross. और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। So Jesus was equal in the status with God the Father and the Holy Spirit. तो यीशु मसीह का जो स्थान था वो उसके पिता के बराबर था। From eternity he existed in that standard and high value and high status. और वो उस अनंत काल से वो अपने पिता के बराबर उस स्थान पर पाया जाता था, इतना मूल्यवान था। Why was it reason for him to come upon this earth as a man and suffer the point of death? तो क्यों उसने चाहा कि वो एक मनुष्य के समान इस पृथ्वी पर आए और मृत्यु का कष्ट सहे। Even when he was on earth, he was completely man and completely human. जब वो पृथ्वी भी था वो पूरी तरीके से मनुष्य भी था और पूरी तरीके से परमेश्वर भी था। He said while the soldiers came to arrest him, और जब सेना के लोग उसे बंदी गृह में लेने आए, उसे बंदी बनाने आए, he said, even if I ask my father right now, he will send the legion of armies right तो now. क्या अगर मैं अभी भी अपने पिता से कहूँ तो वो सेनाएं भेजे स्वर्गदूत की। That was the power Christ carried. वो सामर्थ्य यीशु मसीह के पास, But he still chose to be humble पर फिर भी उसने दीन होना चुना and obey the will of God to the point of death. और वो इतना आज्ञाकारी रहा, वो क्रूस की मृत्यु तक भी आज्ञाकारी It was रहा। not easy for Jesus Christ. और वो अगर यीशु मसीह के लिए आसान नहीं था। हमारा हाथ थोड़ा सा जल जाए या थोड़ा सा कुछ नाखून में कुछ हो जाए, If we get a little bit burnt or hurt in our hands, how many of your skin comes from your nail this side? और आप में से किसकी चटे उखड़ती है, And when it happens, how many of you cry? और जब वो होता है आप में से कितनों को रोना आता है। I have cried. मैं तो रोया हूँ, It's very painful. वो बहुत ही दर्दनाक होता है। But imagine that how much pain Jesus took for us. और आप सोच सकते हैं यीशु मसीह ने कितना दर्द सहा आपके लिए। We couldn't bear it when our skin comes off. हम इतना भी नहीं सह पाते कि हमारी थोड़ी सी खाल उखड़ जाए तो। Jesus took the crown of thorns upon his head. पर यीशु मसीह ने वो कांटों का ताज अपने सर पे He लिया took the forgings upon his back और उसने वो कोड़े अपने पीठ पर खाए till all the flesh came out and the bones are seen. और जब तक सारी खाल नहीं उखड़ गई उनकी हड्डियां ना दिखने लगी They pierced the spear into his ribs. और वो भाला जो था उसकी पसली में घुसाया गया। How much it would be painful. वो कितना ही दर्दनाक रहा होगा। Jesus said to the Father, यीशु मसीह ने पिता से कहा, if it's your will, take this cup away from उन्होंने me. कहा यीशु मसीह परमेश्वर अगर ये पिता तेरी इच्छा है तो इस प्याले को मेरे आगे से हटा But दे, if not my will, let your will be done. पर अगर मेरी नहीं तो तेरी इच्छा पूरी हो। Jesus' mindset was a mind of obedience. जो यीशु मसीह की जो मानसिकता थी वो आज्ञाकारिता की मानसिकता थी। Obey the will of God. परमेश्वर की इच्छा के आज्ञाकारी बने। Obedience isn't about comfort. और जो आज्ञाकारिता है वो आराम के बारे में नहीं है, It is about commitment. वो है प्रतिबंधित होने के बारे में। Jesus obeyed all the way to the cross. और यीशु मसीह ने इतनी आज्ञाकारिता रखी कि वो क्रूस तक चला गया He didn't delay his obedience. और उसने देर नहीं लगाई आज्ञा मानने में। He didn't debate with Father, what if this, what if that, oh you know you can happen this.
और उन्हें वाद विवाद नहीं किया पिता के साथ कि अरे ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो सकता हो तो। He had a mind of obedience and he obeyed the will of the Father. उसका मन एक आज्ञाकारिता का मन था और उसने अपने पिता की आज्ञा को माना। A disciple's mind is surrendered to God's will in obedience. और एक चेले का मन भी समर्पित होता है परमेश्वर की ओर आज्ञाकारिता में, Even when it is painful or जब- unpopular. और चाहे वो आपके लिए दर्दनाक हो या लोगों को समझ ना आए। Think of Abraham. अब्राहम के बारे में सोचिए। God called him to leave all that was familiar to him. और परमेश्वर ने उसे बुलाया कि वो सब छोड़ दे जो उसका था। He did not know where he was going, उसे ये नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है, but he obeyed. पर वो फिर भी आज्ञा को माना। He obeyed the will of the God. उसने परमेश्वर की इच्छा की आज्ञा मानी And God blessed him with the Abrahamic covenant. और परमेश्वर ने उससे एक वाचा के द्वारा उसे आशीष दी। Or Mary, और या मरियम, that she said yes to the will of God, उसने हाँ बोला परमेश्वर की इच्छा को, carrying Jesus inside her womb, और उसने गर्भवती हुए मसीह को उसने गर्भ में लेकर चली, knowing that it could cost her her reputation. और उसको पता था उसकी कीमत उसकी इज्जत होगी, But she still had the mind of obedience. पर फिर भी उसका मन आज्ञाकारिता से भरा And था। she chose to fulfill the God's will. पर उसने चुना मसीह की आज्ञा को पूरा करना। Obedience always costs us something, और जो आज्ञाकारिता है वो कोई ना कोई हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, but it always leads to God's blessing at the end. पर अंत में वो हमेशा हमें परमेश्वर की आशीषों में बढ़ाता है। And that is the mindset we need to carry as a disciple. और वही मानसिकता हम एक चेले होने के नाते रखनी है। Partial obedience is still disobedience. अगर आप आधी आज्ञा को मानते हैं तो वो अनाज्ञाकारिता ही है। Where we debate with God, maybe I can do this much, but the rest of it I cannot do. कि आप परमेश्वर के साथ वाद विवाद करें, मैं इतना कर देता हूँ पर इतना मैं खुद से करूंगा। Partial obedience is still disobedience. जो आधी आज्ञाकारिता है वो पूरी तरीके से अनाज्ञाकारिता ही है। And delayed obedience is disguised rebellion. और जब हम देर से आज्ञा को मानते हैं इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ विरोध में हैं। The world teaches us to live by feelings, और जो संसार हमें सिखाता है कि हम अपने भावनाओं के द्वारा जिएं, but Jesus teaches us to live by faith. पर परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम विश्वास के साथ द्वारा And when जिएं। you live by faith, और जब हम विश्वास में जीते हैं you have to walk in obedience. तो आपको आज्ञाकारिता में ही चलना You पड़ता है, not know what may happen tomorrow, और आपको नहीं पता कल क्या हो जाएगा, from where the food will come, कि खाना कहाँ से आएगा, from where the salary will come, कहाँ से आमदनी आएगी, from where the insurance will be paid, कहाँ से मेरी सारे बिल पे किए जाएंगे, will I be healed or not? क्या मैं चंगा होऊंगा या नहीं होऊंगा। But when you love Jesus, पर आप जब यीशु मसीह से प्रेम करते you हो, follow him in complete obedience. जब आप पूरी आज्ञाकारिता के साथ उसके पीछे चलते हो, And that is the mind of a disciple. तो ये एक मानसिकता है एक चेले की। Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, if you love me, you will keep my वो commandments. कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को And रखोगे। keeping commandment involves obedience. तो आज्ञाओं को रखने में आज्ञाकारिता शामिल होती है। So how can I apply the mind of obedience in my life? तो कैसे हम आज्ञाकारिता के मन को अपने जीवन में उपयोग लाएं? We have to ask ourselves, हमें अपने आप से पूछना है is there something of God that I hadn't obeyed yet? कि कुछ ऐसा है क्या परमेश्वर का जो अब तक मैंने जिसकी आज्ञा ना मानी हो, We need to stop negotiating with God and start surrendering. और परमेश्वर के साथ वाद विवाद करने की जगह हम उसको समर्पण दें। We have to take the next step He's already showing you. हमें वो अगला कदम लेना है जो परमेश्वर ने हमें पहले ही दिखा दिया है, Choose obedience today and not tomorrow. और जो आज्ञा मानना है वो आज करने के लिए चुने, ना कि कल के लिए छोड़ दें। Because a disciple of Christ has a mind of obedience. क्योंकि एक परमेश्वर के चेले का मन एक आज्ञाकारी मन है, A disciple doesn't just follow Jesus. और एक चेला सिर्फ मसीह के पीछे नहीं चलता, They think like Jesus. वो यीशु मसीह की तरह सोचता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you encouraged? क्या आप उत्साहित हैं That we need to become like Christ. कि हमें मसीह के जैसा बनना है? There are already so many who have been the wrong witness of Christ. ऐसे बहुत सारे जो अभी भी मसीह की गलत गवाही देते हैं। How they became the wrong witness of Christ? वो कैसे एक गलत गवाह बन गए मसीह के? Because of wrong mindset. क्योंकि उनकी मानसिकता गलत थी। It is all mindset that plays a very important role in testimony. और वो हर एक गवाही में हमारा जो मानसिकता है वो सबसे बड़ा हिस्सा है उसका। They have accepted Jesus, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया, but still have old thoughts, पर उनके अंदर पुरानी सोच है, old thinking patterns. वो पुरानी मानसिकता है, And that is stopping them from living a victorious life in Christ. और वो रोकती है उन्हें वो विजयी जीवन जीने से जो मसीह में पाया जाता And है। then we are questioning God, Lord, why there is no breakthrough? और हम फिर पूछते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया क्यों नहीं हो रहा Why है? my situations haven't changed? क्यों मेरी परिस्थिति अभी तक बदली नहीं Why है? I haven't changed? क्यों मैं नहीं बदला हूँ? The answer is,
तो जवाब ये है the mindset has not changed. क्योंकि आपकी मानसिकता नहीं बदली है। Because if your mindset will change, क्योंकि अगर आपकी मानसिकता बदल your जाएगी, decisions will change. आपके फैसले बदल If जाएंगे। your decisions change, अगर आपके फैसले बदल गए, your life changes. आपका जीवन बदल जाता So है। we need to evaluate तो हमें जांचने की जरूरत है what kind of mindset am I carrying? कि क्या मानसिकता लेकर हम चल रहे हैं। Is my mind influenced by the social media and Instagram? क्या मेरा मन प्रभावित है सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम से, Is my mind influenced by that 60 seconds what the pastor says? और या मेरा मन प्रभावित है वो रील 60 सेकंड की जो पास्टर ने बोली है। Is my mind influenced by all the web series and the movies that I see? क्या मेरा मन प्रभावित है वो सारी वेब सीरीज या वो सारी मूवीज से जो मैं Is देखता my हूँ, mind influenced by all the things I hear, what people are talking around me? या मेरा मन प्रभावित है उन सारी बातों से जो लोग मेरे चारों ओर Or करते is हैं, my mind influenced according to the word of God? या मेरा मन प्रभावित है परमेश्वर के वचन के द्वारा। Because the word of God renews your mind. क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो आपके मन को नया बनाता है, And when your mind is renewed, और जब आपका मन नया हो जाता है your life is reignited. तो आपका जीवन वापस से उज्ज्वलित हो And when your जाता है। life is reignited, और आपका जीवन जब फिर से उज्ज्वलित होता है, revival happens. वो बेदारी आती है। Disciples have to bring a revival. और एक चेला बेदारी लाने के लिए बुलाया But गया a है, revival cannot come without the mindset of Christ. पर वो बेदारी मसीह की मानसिकता के बिना नहीं आ सकती। Is Dr. Abhishek Sukh still carrying Dr. Abhishek Sukh minds today? क्या डॉक्टर अभिषेक सुख के अंदर अभी भी डॉक्टर अभिषेक सुख की मानसिकता है, Or is it the mind of Christ that he is carrying? या वो मसीह की मानसिकता को लेकर चलता है? For a very long time, एक बहुत लंबे समय के I लिए was a legalist person. मैं एक बहुत ही लीगलिस्ट, बहुत ही अनुशासित व्यक्ति था। All I cared about was the task. मैं सिर्फ कार्यों के बारे में चिंता करता That था things needs to get done. कि चीजें हो जानी चाहिए बस। I did never care about the people. मैं लोगों की चिंता नहीं करता I था, never cared about their well-being. मैं उनकी स्वास्थ्य की चिंता नहीं करता था। But once I started to come to ADC पर एक बार मैं जैसे एडीसी आना and शुरू I किया, started to receive discipleship, और जैसे मैं चेला बनना शुरू किया, in discipleship, चेले बनने की through प्रतिज्ञा the word में of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा my mind started to get renewed मेरा मन नया बनता गया, and started to learn और मैं सीखने लगा that what the word says today, कि वचन आज क्या कहता है। we need to value others more than ourselves. हमें दूसरे की चिंता करनी है अपने से ऊपर। So it's not about the task, तो ये कार्य के बारे में नहीं है, about the people. वो लोगों के बारे में You है have to show to make them see whole, and they have to be encouraged. कि वो उत्साहित और संपूर्णता में चले। Because a disciple doesn't just follow Jesus. और एक चेला क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता, They think like Jesus. वो यीशु मसीह की तरह सोचता है। It comes to the last mark of disciples' mind. और वो आखिरी चिन्ह पे आते हैं जो एक चेले के मन का A है। disciple's mind is focused to glorify God. एक चेले का मन केंद्रित रहता है परमेश्वर को महिमा देने में। Philippians chapter 2 verse 11 ends with this. और फिलिपियो 2:11 इस चीज से अंत होता है That all that Jesus did कि जो कुछ भी मसीह ने किया and all that God bestowed to him, और जो कुछ भी परमेश्वर ने उसको दिया, it was all to the glory of God the Father. वो सिर्फ परमेश्वर उसके पिता की महिमा के लिए था। Jesus didn't come to build his brand. और यीशु मसीह अपनी ब्रांड तैयार करने के लिए आने He आया, came to glorify the Father. वो अपने पिता की महिमा के लिए आया। That was the mindset he carried. वो मानसिकता वो लेकर चलता था। So a disciple's mind isn't driven by applause or recognition. तो एक जो चेले का मन है वो इससे नहीं चलता कि उसे लोग कितना पहचानते हैं और उसकी कितनी तारीफ करते But a हैं, disciple's mind is driven by the desire to honor God in everything. पर वो इस मन से चलता है कि वो हर एक चीज में परमेश्वर को महिमा दे Whether सके। you sing, चाहे आप गाएं, whether you preach, चाहे आप प्रचार whether करें, you teach, चाहे आप सीखें, whether you are making Excel sheet, या आप एक्सेल शीट बना whether रहे you हो, are making coffee, चाहे आप कॉफी बना रहे हो, whether you are serving patients in the hospital, चाहे आप पेशेंट्स को देख रहे हो no, हॉस्पिटल में, whether you are raising up kids, चाहे आप बच्चों को no परवरिश दे रहे matter हो, what you do, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, everything is to the glory of Father in heaven. वो हमारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा के लिए है। And the disciples carry this mindset. और जो चेले हैं वो इस मानसिकता को लेकर Think चलते of it like a mirror. हैं। और आप इसको एक आईने की तरह समझें। A mirror doesn't create light, एक आईना जो है वो रोशनी को पैदा नहीं करता, it reflects light. वो छवि देता है रोशनी की। Our lives are like mirrors. और हमारे जीवन एक आईने के समान It है। is meant to reflect the beauty and holiness of वो Jesus. छवि दिखाने के लिए मसीह की खूबसूरती और उसकी महिमा की। Paul, Peter, and generation of missionaries, और जो पौल और पतरस और जितने भी प्रेरित के पीढ़ियां थी, they lived and died not for fame.
वो जिए और मरे प्रचलित होने के लिए नहीं, They lived and died so God would be known. वो इसलिए जिए और मरे कि मसीह जाना चाहे, So Christ would be known. तो मसीह को लोग जाने। A mind to glorify God in everything, एक मन जो मसीह को महिमा देना चाहता है हर एक बात में, even in death. मृत्यु में भी। For me to live is Christ and to die is gain. मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। I have counted all as loss that I may know him. मैं उन सब को बेकार समझता हूँ जो मैंने अब तक पाया। It's no longer I who live, but Christ who lives वो in me. मैं नहीं जो जीता, पर वो मसीह है जो मेरे द्वारा जीता A है। mind to glorify God in एक everything. मन को जो परमेश्वर को महिमा दे हर एक बात में। We are constantly tempted to make our lives about ourselves. और हम कई बार बहुत ही ज्यादा परीक्षा में पड़ते हैं कि हम जीवन अपने बारे में बना लें। Make it about our goals and our image and our reputation. हम अपने, हमारी इज्जत, हमारे जो दर्शन है उनके बारे में सोचते हैं, That we forget that it is not us who should be glorified, it is Christ should be पर हम glorified. भूल जाते हैं कि वो हम नहीं बल्कि वो मसीह है जिसको महिमा मिलनी It is चाहिए, He who have to be lifted on high and we have to decrease. कि वो है जो ऊंचे पर उठाया जाए और हम घटाए जाएं। We live in a world where the world lives by this principle. और हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो इस सिद्धांत में चलता है, The world lives by principle called follow the opportunities. और वो सिद्धांत ये है कि अवसरों के पीछे जाओ। But we as disciples live by values. पर हम एक मसीह, एक चेला होने के नाते हम मूल्य के पीछे चलते हैं। You have many great opportunities आपके पास बहुत अच्छे अवसर होंगे, that will lift you up, give you good reputation, वो आपको अच्छा स्थान देंगे, आपको ऊंचे पे उठाएंगे, give you good money or give you good job, good securities. आपको अच्छी नौकरी, अच्छी सुरक्षित जीवन देंगे। But that is opportunity driven mind. पर वो है अवसर से चलने वाला मन। But when you are a disciple of Christ, पर जब आप एक मसीह के चेले होते हैं, you have a value driven mind. आपका एक मूल्य से चलने वाला जीवन है। And what is that value? और वो क्या है वो मूल्य? In this is Christ glorified. क्या इसमें मसीह को महिमा मिल रही है? Is this job that I'm going to take, will Christ be glorified? क्या ये नौकरी जो मैं लेने वाला हूँ उसमें मसीह को महिमा मिलेगी? Is this what I'm going to do? Christ will be glorified. क्या मैं ये जो आगे करने वाला हूँ उससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी? The mission of every disciple is to make Jesus known. तो एक चेले का मिशन, हर एक चेले का यही मिशन है कि हम मसीह को, हमारे द्वारा मसीह जाना जाए, And not self. और हम ना कि हम जाने जाएं। The Bible says in 1 Corinthians chapter 10 verse 31. और वचन ऐसा कहता है 1 कुरिन्थियों 10 उसके 31 में, So whatever you eat or drink कि जो भी तुम खाओ या पियो or whatever you do, या जो भी तुम करो, do it all for the glory of God. वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए Whatever करो। is in your life, जो कुछ भी आपके जीवन में है everything has to glorify God. वो परमेश्वर को महिमा लाना And चाहिए। we as the disciples of Christ और हम एक मसीह के चेले होने के नाते need to have that mindset हमें वो मानसिकता रखने की जरूरत that है every decision I make, कि हर एक फैसला जो मैं लूं, whether it is about my marriage, चाहे वो मेरी शादी के बारे में whether है, it is about my church, चाहे वो मेरी कलीसिया के बारे whether में it है, is about my career, क्या वो मेरे करियर के बारे में हो, everything has to glorify Christ. हर एक चीज में प्रभु को महिमा मिलनी In चाहिए। Psalms 115 verse 1, और भजन संहिता 115 उसके 1 में ऐसा कहता है, it says, not to us, वो कहता है हमारे लिए नहीं, Lord, not to us, हमारे लिए नहीं प्रभु, but to your name be the glory. कि बल्कि आपके नाम को महिमा मिले। Is Christ receiving glory from every area of your life? क्या परमेश्वर को महिमा मिल रही है अपने जीवन के हर एक क्षेत्र से, Or our mindset has restricted या हमारे मानसिकता ने हमें रोक रखा है certain areas कुछ क्षेत्रों को from receiving glory in Christ? कि हम परमेश्वर को महिमा देने से रोके रहें? We have something very deep to evaluate. हमें पास बहुत गहराई की बात है जिसको हमें जांचना है। Use your gifts to point others to Him. आप अपने वरदानों को इस्तेमाल करें कि लोगों को परमेश्वर की ओर केंद्रित कर Use सकें, your opportunities to point to Him. और आप अपने अवसरों को चुनें कि आप लोगों को परमेश्वर की ओर केंद्रित So कर सकें, Christ is glorified and not us. क्योंकि परमेश्वर को महिमा मिले ना कि हमें। Because a disciple doesn't just follow Jesus. क्योंकि एक चेला सिर्फ मसीह के पीछे चलता नहीं है, They think like Jesus. बल्कि वो मसीह की तरह सोचता है। It is very difficult और ये बहुत ही मुश्किल है, to give up the way we are thinking. और बहुत ही मुश्किल है छोड़ना जिस तरीके से हम अपनी मानसिकता को रखते हैं। Because we are very comfortable where we are. हम बहुत आराम की स्थिति में हम जहाँ पर हैं। Sometimes in your discipleship, कई बार आपके चेला बनने की प्रक्रिया में the word of God will challenge some of your mindsets. आपके बहुत सारी मानसिकता को परमेश्वर का वचन चैलेंज करेगा। But what is more important? पर आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है? You
आप or Christ? या मसीह? Because when you love Christ, क्योंकि जब आप मसीह से प्रेम करते हो, you choose to give up your mindset आप चुनते हो अपनी मानसिकता को and दे you देना put on His mindset. और आप उसके मन को अपने ऊपर डाल And लेते when हो। you put on His mindset, जब आप उसकी मानसिकता को डालते the हो kingdom of God gets expanded. तो परमेश्वर का राज बढ़ता जाता है, Because Christ क्योंकि मसीह looks upon His disciples वो अपने चेले की तरफ देखता है carry His mindset. कि वो उसके मन को लेकर चलें। Hallelujah. हालेलुया। So if we want to live like Jesus, तो अगर आप मसीह के जैसे जीना चाहते हो, we must think like Jesus. हमें मसीह की तरह सोचना जरूरी है। Discipleship doesn't begin with our hands. और जो चेला बनना है वो हमारे हाथों से शुरू नहीं होता, It begins with our minds. वो हमारे मनों से शुरू होता है। The world needs more than Christian voices. और परमेश्वर को मसीहों की आवाज से कुछ और बढ़कर चाहिए। The world needs Christ-like minds उन्हें परमेश्वर की जैसे मन रखने वाले चाहिए, that will bring wholeness and freedom in this earth. जो संपूर्णता और आजादी को लेकर आए इस पृथ्वी Who पर, will love the people of this earth like Christ. जो इस पृथ्वी के लोगों से प्रेम करें मसीह की तरह, Who will choose to humble themselves. जो चुने अपने आप को दीन करना। No matter if you are a doctor. नहीं, फर्क नहीं पड़ता अगर आप एक डॉक्टर No हैं matter if you are a principal. या आप कोई प्रिंसिपल हैं No matter if you are a director of a CEO of a company. या आप किसी कंपनी के डायरेक्टर या सीईओ हैं, Having the disciples' mind. एक चेले का मन रखना। I choose to lay it down all so that people who do not know Christ will know मैं अपना Christ. आप सब कुछ दे देने के लिए तैयार हूँ कि परमेश्वर जो मसीह को नहीं जानते जान सके। Discipling nation doesn't start in the streets. और जो राज्यों को चेला बनाना है वो सड़कों पे शुरू नहीं होता, It starts in the minds. वो मनों में शुरू होता है। When the church thinks like Christ, और जब एक कलीसिया मसीह की तरह सोचती है the world will see Christ. तो संसार मसीह को देख पाएगा। Church, would you put on the mind of Christ कलीसिया, क्या आप परमेश्वर के मन को लेंगे and bring life awakening in this world? और क्या आप जीवन जागृति लेके आएंगे इस Because संसार में? that is what Christ is expecting out of क्योंकि us. यही अपेक्षा मसीह हमसे रखता है। He wants us to be the source of life. वो चाहता है हम स्रोत बने उस जीवन का। How do we start to become source of life? कैसे हम शुरू कर सकते हैं स्रोत बनने का उस जीवन के? By putting on the mind of Christ. कि हम ओढ़ लें उसके मन को। And when we put on the mind of Christ, और जब हम उसे डाल लेते हैं, there is a revival that will begin that no one can stop. एक ऐसी बेदारी शुरू होगी जो कोई नहीं रोक सकता। Hallelujah. हालेलुया। I am encouraged with today's word. क्या आप उत्साहित हैं आज के God वचन से? wants us to be His disciples. परमेश्वर चाहता है हम उसके चेले बने। And He wants us to bring life awakening. वो चाहता है हम जीवनों में जागृति को लेकर He आए। wants us to be the source of वो life. चाहता है हम जीवन का स्रोत बने। Hallelujah. हालेलुया। So may God give us all grace और परमेश्वर हमें सारा अनुग्रह दे and God strengthen us और परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाए to have His mind कि हम उसके मन को लेकर चलें, wherever we go चाहे हम जहां भी जाएं, and let Him और वो increase बढ़ता जाए and we decrease. और हम घटते जाएं। May you all be blessed by today's word. हो सके आप सब आशीषित हो आपके आज के वचन से।